Aus billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As you know, we have completed the translation and first half exercise of unit number 10, A World Without Books. In our today's lecture, we will complete the second half exercise of this unit. Let's start from the grammar portion. Here it is relative pronouns. Students, as you know, what is pronoun? Pronouns ऐसे वर्ड्स हैं जो हम nouns की जगह पर यूज़ करते हैं. In our previous lecture, we have discussed the definition of pronoun. हम इस चैप्टर में relative pronouns के बारे में पढ़ेंगे और इनकी definition के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं. ऐसे pronouns जो एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ रिलेट करते हैं उसको हम relative pronouns कहते हैं. दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक क्लास या फ्रेज को नॉन या प्रोनाउंस के साथ जो अल्फाज रिलेट करते हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. ये कौन कौन से होते हैं? विच, डैट, व्हाट, हुज एटसेट्रा. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये अल्फाज तो इंट्रोगेटिव हैं, यानी कि सवाल करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस में ये नोन्स के बाद यूज़ होते हैं. यहाँ मैं आपको कुछ अल्फाज के फंक्शंस और उनका यूज़ बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, विच यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए. डैट यूज़ होता है लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए. हु यूज़ होता है लिविंग बींग्स के लिए. हुज शो करता है पोजेशन को. नाउ लेट्स मूव टू सॉल्व द एक्सरसाइज. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑप्शन. व्हाई आर यू सैड? आई हैव लॉस्ट द पेन डैश आई बाउट दिस मॉर्निंग. द आंसर इज विच. जैसा कि मैंने आपको बताया है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम विच यूज़ करते हैं, सो यहाँ पर विच आएगा. Have you seen the man dash bought up books from the shop just now? And the answer is who. Man का जिक्र हुआ है इसलिए यहाँ पर हम who लगाएंगे. The man dash you were talking to at the meeting is my cousin. And the answer is dad. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि dad हम living and non-living के लिए यूज़ कर सकते हैं. Farid said dash he needed the most was a long and quiet holiday. And the answer is dad. Have you got anything dash these poor women could take for their children? And the answer is which. Now let's move to the next option, that is adjective class. क्लास के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लास. क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब. ऐसा अल्फाज का मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो उसको हम क्लास कहते हैं. और एडजेक्टिव क्लास ऐसा क्लास है जिसमें एडजेक्टिव मौजूद होता है. अब आते हैं इसके फंक्शंस की तरफ कि ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है. ये मॉडिफाइज अ नोन और अ प्रोनोन इन द मेन क्लास, यानी कि मेन क्लास में नोन और प्रोनोन को ये मॉडिफाइज करता है, जैसे कि ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी है. अब ये बिगिंस किससे होते हैं? अ रिलेटिव प्रोनोन सच एज डैट, विच, हु, whom, whose and a relative adverb such as where, when, why. अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ. The umbrella which has a broken handle is mine. Broken handle, broken यहाँ पर क्या है? Adjective है. Which has a broken handle ये adjective class है. Now let's move to solve the exercise of the adjective clause. Pick out the adjective clause in each sentence. Okay, now let's move to solve the exercise. A person
who acknowledges his mistakes is admirable. And the answer is who acknowledges his mistake. ये यहाँ पर क्या है? Adjective class है. People who live in glass houses should not throw stones. यहाँ पर adjective class है who live in glass houses. The books that have been recommended are all out of stock. यहाँ पर adjective class है that have been recommended. The question that she posed was too difficult to answer. यहाँ पर adjective class है that she posed. Now let's move to the fifth one. Everyone who has been invited is present. And the adjective class is who has been invited. Now let's move to the option number C. In the following sentences, replace adjective class by adjectives or adjective phrases. यहाँ पर हमें adjective classes दी गई हैं. अब हमने उन्हें simply adjectives या adjective phrases में convert करना है. So let's move to solve the exercise. The first one is, he is a person who considers the interests of the other people. And the answer is, he is a caring person. Which is the road that leads most quickly to the station? And the answer is, which is the shortest route to the station? The third one is, the explanation he gave was not satisfactory. And the answer is, he gave unsatisfactory explanation. This is the place where our forefathers landed. And the answer is, this is the landing place of our forefathers. The reason why he failed is obvious. And the answer is, he has obvious reason of his failure. Now let's move to the next option, that is the second conditional sentences. प्रीवियस चैप्टर में हमने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में स्टूडेंट्स, एज यू नो, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें पॉसिबल सिचुएशंस पाई जाती हैं और वो मौजूदा ज़माने और आने वाले ज़माने के बारे में बताते हैं. अब सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ आते हैं. इन द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस वी स्पेक्यूलेट अबाउट सिचुएशंस दैट विल प्रोबेबली एवर हैपन एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर. सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें इम्पॉसिबिलिटी पाई जाती है और इस इम्पॉसिबिलिटी को लेकर हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन होता है जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं होता, टोटल वो हकीकत से परे होता है. एग्जाम्पल, व्हाट वुड यू डू इफ देयर वर नो मोर बुक्स. यानी कि ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें इम्पॉसिबिलिटी पाई जा रही है. स्टूडेंट्स, अगर इफ क्लास में जो वर्ब है बी की फॉर्म में होगा तो वहाँ पर हम वर्ब पुट करेंगे. डजेंट मैटर वहाँ पर ही, शी और इट है, लेकिन अगर वर्ब बी की फॉर्म में है तो हम वहाँ पर वर्ब ही पुट करेंगे. अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ. इफ क्लास में सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा और मेन क्लास में वुड प्लस इन्फिनिट या फिर कुड प्लस इन्फिनिट या फिर माइट प्लस इन्फिनिट यूज करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू सोल्व द एक्सरसाइज. पुट इन द करेक्ट सेकंड कंडीशनल वर्ब फॉर्म. इफ ही बी यंगर ही ट्रेवल मोर. एंड द आंसर इज, इफ ही वर यंगर ही वुड ट्रेवल मोर. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब बी की फॉर्म में हो तो वहाँ पर हम वर्ब पुट करेंगे. इफ शी नॉट बी ऑलवेज सो लेट शी बी promoted. If she were not always so late she would be promoted. If क्लास में हम past indefinite पुट कर रहे हैं. If I spoke, यहाँ पर जो वर्ब है वो बी की फॉर्म में नहीं है,
इसलिए हम यहाँ पर सिंपल पास्ट इंडेफिनिट पुट करेंगे. इफ आई स्पोक परफेक्ट इंग्लिश, आई डैश हैव अ गुड जॉब, आई वुड हैव अ गुड जॉब. इफ शी पास द एग्जाम, she be able to enter the university. If she passed the exam, she would be able to enter the university. We dash buy a house if we decide to stay here. We would buy a house if we decided to stay here. जैसे कि if clause यहाँ पर आ गई है तो हम if clause में simple past indefinite पुट करते हैं, इसलिए यहाँ पर डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड आई है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ई. फॉर्म क्वेश्चंस इन पैसिव वॉइस. एग्जाम्पल, कॉफी ग्रोन इन साउथ अमेरिका इज. यानी कि हमें वर्ड्स दिए गए हैं लेकिन रैंडम फॉर्म में हैं. हमने इनको कन्वर्ट करना है इन अ प्रॉपर फॉर्म में और उनके पैसिवाइज करने हैं. द फर्स्ट वन इज वर कॉट द थीव्स एंड द आंसर इज वर द थीव्स कॉट. द नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेड विल बी माई अपॉलजी एंड द पैसिवाइज इज विल माई अपॉलजी बी एक्सेप्टेड. द वर्कर्स बी computers will be replaced and the answer is will the workers be replaced by computers. Was the accident by the police yesterday seen? And the answer is was the accident seen by the police yesterday. The next one is where the first underground railway opened was, and the answer is where was the first underground railway opened. Okay students, we have completed the exercise of unit number 10. Take care of yourselves. Allah Hafiz.